بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر جے کے ٹی وی نیوز کے ساتھ رانا الیاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں پاکستان سمیت آزاد کشمیر کی جانی پہچانی شخصیت رہنما کل جماعتی حریت کانفرنس جناب محترم سید منظور احمد شاہ صاحب، جن سے ہم نے مقبوضہ کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر اور اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جو سنگین صورتحال ہے، بھارت جو نام نہاد جمہوریہ آج اس کا منایا جا رہا ہے، وہ لاکھوں کشمیریوں کا قتل عام کر چکا ہے، اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں جناب محترم سید منظور احمد شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے کشمیر جے کے ٹی وی نیوز کو وقت دیا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس موجودہ کشمیر کی صورتحال کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ بہت شکریہ رانا صاحب، جے کے ٹی وی کا شکریہ۔ بہت شکریہ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ابھر رہی ہے اس کو بڑی تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس یہ سمجھتی ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں تمام سیاسی قائدین اور سیاسی ورکرز کو اور سیاسی کارکنوں کو قید میں ڈال کر اس تعداد کو 15,000 تک پہنچا دیا ہے۔ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ ہم جب ان سے اظہار رائے چھین لیں گے تو اس طرح بھارت کے خلاف کوئی آزادی کی آواز نہیں رہے گی اور تحریک شاید ختم ہو جائے گی۔ یہ بھارت کی خام خیالی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس یہ سمجھتی ہے کہ اگرچہ بھارت نے وہاں ہماری سیاسی پوزیشن کو چوک کر دیا ہے، اگرچہ وہاں مقبوضہ کشمیر میں اظہار رائے چھینا جا چکا ہے، اب وہاں لوگوں کے گھروں کو بھی مسمار کیا جا رہا ہے، اب 4.2 ملین لوگوں کو ڈومیسائل بھی دیا گیا ہے، ان میں سے 85,000 لوگوں کو بسایا بھی گیا ہے اور ان کو ووٹ کا حق بھی دیا گیا ہے، یعنی ڈیموگرافک چینج جو ہے وہ بھارت بتدریج وہاں مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے۔ تو اس کے باوجود حریت کانفرنس یہ سمجھتی ہے چونکہ آزاد کشمیر ہمارا حصہ ہے، آزاد کشمیر سے جو ہم اس وقت اپنی آواز اٹھا رہے ہیں اور بھارت کے ان مظالم کو دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں، بے نقاب کر رہے ہیں، تو کل جماعتی حریت کانفرنس یہ سمجھتی ہے کہ پوری دنیا تک یہ آواز پہنچ رہی ہے۔ اس بات کا ثبوت کشمیری رہنما یاسین ملک طویل عرصے سے بھارت کی جو نام نہاد جیل ہے اس میں قید ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی نہیں ہے؟ عالمی قوانین کی دجیاں بھارت اڑا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے جو ہماری پوری سیاسی قیادت کو، جس میں آسیہ اندرابی ہے، شبیر شاہ صاحب ہیں، اس میں ایاز اکبر صاحب ہیں، اس میں ہمارے وہاں ڈاکٹر فیاض صاحب ہیں، اس طرح وہاں ہمارے درجنوں پختو صاحب ہیں، قاسم پختو صاحب ہیں، درجنوں چوٹی کے لیڈر بھی وہاں بند ہیں اور ہزاروں دیگر کارکنوں کو بھی انہوں نے بند رکھا ہوا ہے۔ تو ان کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی فوجوں نے ان کو کوئی سہولت، وکلا کی سہولت نہیں دی، ریپریزنٹیشن کی، کورٹ ریپریزنٹیشن کی سہولت بھی نہیں دی، بھارت نے ان کو کوئی فیسلٹی نہیں دی، ان کو کوئی علاج معالجے کی جو سویدھائیں ہیں یا جو فیسلٹیز ہیں وہ نہیں ہیں، کوئی سہولت ان کو میسر نہیں ہے۔ بھارت آج تک 4 کشمیری لیڈروں کو مقید کر کے قتل کر چکا ہے، جن میں سید علی گیلانی ہمارے چوٹی کے رہنما ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو بھارت کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان کو ہم جیلوں میں ہی مار دیں گے، تو ان کا بزم خیش وہ یہ سمجھتے ہیں اس طرح تحریک ختم ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ ہمارے جو رہنما ہیں وہاں، یہ سارے عوام کے دلوں سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں، یہ عوام کے دلوں میں بستے ہیں۔ کسی ایک رہنما کو وہ قتل کر دیں گے تو بعد میں پیچھے تحریک ختم ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہوا۔ سید علی گیلانی کے بعد آج بھی لاکھوں دلوں میں سید علی گیلانی زندہ ہیں اور لاکھوں لوگوں کے دلوں میں اشرف صحرائی زندہ ہیں، الطاف ہنتوش صاحب زندہ ہیں، دیگر لیڈر زندہ ہیں۔ تو بھارت اس خام خیالی میں نہ رہے، اور یہ عالمی قوانین کی صریح اور سنگین خلاف ورزی ہے۔ پاکستان سے گزارش ہے کہ 28 فروری کو، تقریباً 28 جنوری کو تقریباً ایکسپیکٹڈ ہے کہ یاسین ملک کو وہ پھانسی کی سزا دلوائیں گے، عمر قید وہ آلریڈی گزار رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پوری پاکستانی قوم سے، آزاد کشمیر کے عوام سے حریت کانفرنس یہ اپیل کرتی ہے کہ وہ اس سانحے کو روکنے کے لیے نکل آئیں اور ہماری
रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है वजारत खारजा पाकिस्तान से, वो इस मसले को खारजा सतह पर उठाएं, अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है उस जो एक फोरम है उसका भी सरबराह है, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी पाकिस्तान 2 साल के लिए सरबराह मुंतखब हो ठीक हो चुका गया। है। शाह साहब, अगले सवाल की जानिब आएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने मसला कश्मीर पर अपनी करारदादों पर इस वक्त तक अमल दरामद क्यों नहीं करवाया? अक़वाम मुत्तहिदा का अलमिया ये रहा है कि ये ताकतवर मुल्कों की लौंडी रही है। ये पहले सुपर पावर जो 5 लोग होते थे, मुस्तकिल अराकीन जिनके पास वेटो पावर है, जैसे फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, चाइना और रशिया, इन 5 ममालिक की ये बांदी और लौंडी बनी हुई थी। मगर अब चूंकि आलमी हालात बदल रहे हैं, अब यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई, यूनिपोलर वर्ल्ड खत्म हो गई है, अब ट्राइपोलर वर्ल्ड बन गई है। अब कोई एक सुपर पावर नहीं रहा। अब हमारे इम्कानात ज्यादा रोशन हो गए हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। पिछला बरस 10 मई को पाकिस्तान ने जो अपनी ताकत दिखाई है, पूरी दुनिया उसकी मुतरफ हो गई है, भारत को शिकस्त हो गई है, और भारत तब से लेकर आज तक कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर जी जारी है, मगर कहां? भारत के अंदर। वो ये इसकी हिम्मत नहीं करते कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखें। अब पाकिस्तान के पास वक्त आ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की बड़ी अहम पोजीशन है। आलमी सतह पर जो इस वक्त नई साफबंदियां हो रही हैं, इसमें भी पाकिस्तान का रोल बड़ा कुलीदी है। इसलिए इंशाअल्लाह मुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा ने जो गलतियां माजी में की हैं, अपनी करारदादों पर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया, अब पाकिस्तान उनसे अमल दरामद करवाएगा। क्या अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों के साथ अपना वादा पूरा करने में नाकाम हो चुकी है? आप क्या समझते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसे ही अर्ज कर रहा था, पहले पाकिस्तान को वो कमजोर समझते थे और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इस मसले को बायलेटरल मसला समझते हुए हिंदुस्तान के पक्ष में जाते थे, उसके फेवर में जाते थे। मगर अब पाकिस्तान चूंकि कामयाब हुआ है, पूरी आलमी दुनिया में पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया है। पाकिस्तान इस वक्त अहम तरीन मुल्क है पूरी आलमी जगराफियाई सियासी तब्दीलियों की तरकीब में। इसलिए ये जरूरी है कि अक़वाम मुत्तहिदा को पाकिस्तान रुजू करेगा, और अक़वाम मुत्तहिदा अपनी गलतियों में जिसमें वो आज तक नाकाम हुआ है, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि मकबूजा कश्मीर से मुतल्लक 18 करारदादों को इम्प्लीमेंट करने में वो नाकाम हो चुका है। मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल, फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल और कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे जनाब मोहतरम सैयद मंजूर अहमद शाह साहब। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हम ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाह साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि मौजूदा हालात में हुर्रियत क़यादत की अमली हिकमत अमली क्या होगी? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की इस वक्त मैनीफोल्ड, हम इसको हेक्साफोल्ड पॉलिसी कहते हैं, यानी 5 फ्रंट्स पे 6 फ्रंट्स पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस लड़ रही है। मकबूजा कश्मीर में जिस तरह भारत ने सारे लोगों को जेल में डालकर कश्मीर को ओपन जेल में बदल दिया, अब वो वहाँ किसी को आवाज़ उठाने नहीं दे रहे हैं, तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की इसके दौरान ये है, आपने देखा कि गुज़श्ता 2 साल में जब से गुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर हो गए हैं, तब से लेकर आज तक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मुसलसल कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुजफ्फराबाद, बाग, कोटली, मीरपुर, हर जगह जल से जुलूस कर रही है, अवामी पब्लिक डिप्लोमेसी कर रही है, अवामी रैलीज कर रही है। तो इसके 2-3 मकासद हैं। एक मकसद ये है कि लोग मसले कश्मीर से बाखबर रहें, मौजूदा हालात से बाखबर रहें। दूसरा ये है कि ये एक प्रेशर मैनिपुलेशन भी है, इससे भारत को पता चले कि उन्होंने अगर वहाँ मकबूजा कश्मीर में बंद कर दिया है तो वो किसी और जगह आवाज़ बंद नहीं कर रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इस वक्त डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली और जेनेवा में और डायस्पोरा में मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुतहरिक है, और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ इदारे जैसे कश्मीर मीडिया सर्विस है, KIIR है, ये सारे इदारे अपना काम कर रहे हैं। शाह साहब, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए ये पैगाम बड़ा अहम है कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर बना है, इस्लाम की बुनियाद पर बना है, कलमे की बुनियाद पर बना है, और इसी कलमे की बुनियाद पर कश्मीरियों ने 19 जुलाई 1947 में पाकिस्तान बनने से पहले ही अपना किबला मुसलमानों के साथ, पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ जोड़ा, अपना मुक़द्दर पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ जोड़ा। इस नज़रियाती सबक को कश्मीरी कौम को भी याद रखना चाहिए और पाकिस्तानी नौजवानों को भी याद रखना चाहिए कि हमारा मुल्क इस्लाम के लिए है, इस्लाम का किला है, इस्लाम के लिए बना है, और इस्लाम का और पाकिस्तान का ताल्लुक जो है वो चोली दामन का है, और ये ताल्लुक हमारे नौजवानों के दिलों में उजागर रहना चाहिए। इसी के साथ रहते हुए उन्हें अपने मुस्तकबल की पेशबीनी और तरतीब करनी चाहिए। आखिरी सवाल की जानब आएंगे। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की क़यादत से आपकी बुनियादी क्या तवक्कुआत हैं? पाकिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की क़यादत दो मुख्तलिफ क़यादतें हैं। आज़ाद कश्मीर की क़यादत ने बदकिस्मती से अभी तक कोई अमली और ठोस काम नहीं किया। ये बदकिस्मती, उन्होंने अपने घर और ख़जाने भर दिए हैं, अपने बाल बच्चों को आबाद किए हैं। उन्हें पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट करके, पाकिस्तान के साथ ताउन करके, पाकिस्तान की क़यादत के साथ मिल के मशावरत करके, सफारत खाने पाकिस्तान और जो हमारे ये फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान है इसके साथ मिलकर पॉलिसी बनानी चाहिए। और जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त मसले कश्मीर को लेकर आगे बढ़ रहा है, खास तौर पर हमारी पाक फौज जिस तरह मसले कश्मीर को लेकर आगे बढ़ रही है, आज़ाद कश्मीर के लोगों को और सियासतदानों को अपने आप को इसके साथ अलाइन करना चाहिए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ अलाइन करना चाहिए, और फिर इनका भी मुस्तकबल जो है महफूज है और कश्मीर भी आज़ाद होगा, और पाकिस्तान भी जब ये ताउन करेंगे तो मजबूत होगा। मजीद पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर इकदाम कर सकता है। अगर आलमी जो इदारे हैं, आलमी ज़मीर इस वक्त मजीद खामोश रहा तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं? अगर आलमी ज़मीर और ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा मज़ीद खामोशी इख्तियार करता है तो अक़वाम मुत्तहिदा का वजूद ऑलरेडी वेनेज़ुएला के वाक़े से ख़तरे में है। और फिर ट्रंप की जो इस वक्त ये है कि वो ग्रीनलैंड को भी हथियाना चाहता है और भी बाकी ममालिक पर वो चढ़ दौड़ना चाहता है, जैसे ईरान को धमकियाँ मिल रही हैं। तो इस तरह अगर आलमी बरादरी, ख़ास तौर पर यूरोपियन यूनियन अक़वाम मुत्तहिदा को मजबूत नहीं करेंगे तो अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम ही ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे रहनुमा कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जनाब मोहतरम सैयद मंजूर अहमद शाह साहब, जिनसे हमने मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बात की, और कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक को जो इस वक्त उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे हैं और 28 जनवरी को उनके हवाले से एक अजीब और गरीब किस्म का फैसला होने जा रहा है इस सारे सूरत हाल पर, और मकबूजा कश्मीर में बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा का जो मुर्दा ज़मीर है उसके हवाले से बात कर रहे थे जनाब मोहतरम मंजूर अहमद शाह साहब। शाह साहब, आपके वक्त का एक बार फिर शुक्रिया, आपने कश्मीर जेके टीवी न्यूज़ को वक्त दिया। अगले प्रोग्राम तक मुझे यानी अपने मेज़बान राना इलियास को मुज़फ़्फ़राबाद से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।